So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. So as you know, in this video, we'll be starting exercise 4.2. We'll be solving it. And in the next video, we'll be dealing with exercise 4.3. So let's do a quick recap. So we have discussed till now the basic geometrical ideas such as points, line segment, line, ray, and what do we mean by parallel lines, perpendicular lines, intersecting lines, and how is a line segment bisected. And further, in the next part 2, we have solved the exercise 4.1, and in the part 3 we have discussed about the concepts such as curves, the types of curves such as simple curve, open and closed curve. And in the next topic we have discussed polygons, the constituents of a polygon, such as the vertex and the sides of a polygon, which are the line segments, of course. We have discussed in detail the three types of vertices. In the primary one, the adjacent vertices are the part of your is the part of your syllabus of class 6th, and the other two types are not the part of your syllabus but have been given to you for additional knowledge, have been discussed and in detail. So these are, I'll just do a quick recap. These are the opposite vertices and the vertices opposite to particular sides. And then we have discussed about the angles and the constituents of angles, such as the arms or sides of the angles, which are primarily the rays, but they can also be formed with the help of line segments or lines. And then we have discussed the other thing which is constituent is the common initial point. That is the point where the angle is made with the help of the two sides. So let's start exercise 4.2. So exercise 4.2, question number 1, classify the following curves as open or closed. मतलब कि इन curves को open या closed हमें बताना है. तो जाहिर सी बात है open कौन से थे, for example this, और closed कौन से थे जो इस तरह से closed हो, या तो intersect कर रहे हो कहीं पे या फिर उनका जो initial point और end point है वो coincide कर रहा हो. ओपन कर्व कौन सा हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज्ड हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये क्लोज्ड हो गया और ये भी क्लोज्ड हो गया. ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आई होप यू गाइस द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. गाइस बोल दिया जैसे वो वाला वीडियो है, लो गाइस चाय पी लो. We are an academic channel. The things here will be totally professional, but sometimes we'll have some jokes, some funny moments, so that the class can be carried on and the people and the students do not lose interest in the class, the concepts as well as the exercise. So question number 2, draw rough diagrams to illustrate the following: open curve and closed curve. तो जैसा कि देखिए मैंने चैप्टर 1 में ही आपको बताया था, जैसे जब हम लोग नंबर्स को डील कर रहे थे उसमें था कि भाई आप 5 नंबर लिखिए या 10 नंबर या 6 एग्जाम्पल्स दीजिए. तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कभी भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल अपने दिमाग में लाने की कोशिश ना करें, है ना. जो सबसे आसान एग्जाम्पल हो उससे आप यूज करें और उसको आप रेफरेंस दें आंसर में, और आप अगले क्वेश्चन पे जाएं. अपना टाइम बर्बाद ना करें क्योंकि उससे कुछ होना नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी टीचर बहुत ही चाइल्ड मतलब चाइल्ड फ्रेंडली होगी तो वो एक इस तरह का आपको अच्छा सा स्माइली बना के दे देगी, है ना, और बढ़िया से करके. तो ये सब चीज़ों की कोई वो नहीं है. आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे फोकस करना और सीनियर क्लासेस पे फोकस करना है. ओपन कर्व के जैसे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले नारुतो बना लेते हैं हम लोग. नारुतो मतलब साइक्लोन. ठीक है, और क्या बना लेते हैं, ये आपका ओपन कर्व हो गया. और क्या हो गया, कुछ भी हो गया जहां कोई भी इंटरसेक्टिंग ना हो. क्लोज्ड कर्व क्या हो गया, जहां पे ये क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये सब क्लोज्ड कर्व है. ठीक है, तो आप इस तरह से बना लीजिए. टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, द आंसर इज फिनिश्ड. क्वेश्चन 3, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर. अच्छा, हमने क्या समझा था, पॉलीगॉन में तीन चीजें समझी थी. एक क्या, साइड्स विच आर द लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स जिसमें कि एडजेसेंट एंगल्स आ रहे थे, एडजेसेंट वर्टिसेस आ रहे थे. एंगल्स नहीं इसमें समझे थे, एंगल्स हम लोग बाद में समझेंगे. वर्टेक्स समझे थे. ठीक है, तो एंगल्स अलग से समझाया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन वर्टेक्स से ही एंगल बनता है. वर्टेक्स और साइड्स के कॉम्बिनेशन को ही एंगल कहते हैं, है ना. और हर क्लोज्ड मतलब हर पॉलीगॉन के अंदर एक
एंगल होता ही होता है, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो हम लोग कोई बात नहीं। तो साइड्स पढ़े थे, वर्टेक्स पढ़े थे, वर्टेक्स में क्या पढ़ा था, एडजेसेंट वर्टेक्स पढ़े थे, वर्टिसेस पढ़े थे, और क्या पढ़ा था हमने, रीजन। तो व्हाट इज अ रीजन? द रीजन इज द एरिया इंक्लोज्ड बाय अ पॉलीगॉन, बाय अ कर्व, है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो पॉलीगॉन का इंटीरियर कैसे शेड करेंगे, ये हो गया। अब आप स्केल को लेकर के स्ट्रेट लाइंस यूज करके इस तरह के इक्विडिस्टेंट बना लें लाइन। इक्विडिस्टेंट मतलब ये जैसे चार लाइन बनाई तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, दे शुड बी सेम। अगर आपने 5 mm रखा है मिलीमीटर तो 5 मिलीमीटर रखिए सब में, अगर 4 मिलीमीटर रखा है तो 4 मिलीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर रखा है तो 1 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइंग। ऐसा ना हो कि आप एक सर्कल बना लें और उसमें ऐसे करके आप शेडिंग कर दें, है ना, तो इट विल बी नॉट गुड एज एन आंसर। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर ले सकते हैं, की शेडिंग कर सकते हैं। आप एक पैरेललोग्राम ले सकते हैं, खैर आप इसको क्वाड्रिलेटरली मानिए, और 4 साइड्स 4 लाइन सेगमेंट्स, इसको आप इस तरह से शेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेड करके आंसर दिखा दीजिए। So coming to the next question, consider the given figure and answer the questions. Is it a curve? Is it closed? ठीक है, तो मतलब इसमें गिवन फिगर है, अब इसमें कर्व बताना है कि नहीं, बिल्कुल, यस इट इज अ कर्व। इज इट क्लोज्ड? यस इट इज क्लोज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। In case you are watching our videos for the first time, do connect on our previous videos, watch them and understand them, make notes of them in your notebooks, है ना, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। We have started from the basics, chapter 6, class 6, chapter 1. So you can watch those videos from the link in the description. Question number 5, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. Part A closed curve that is not a polygon. चलो, मतलब एक closed curve that is not a polygon, ये हो गया। और क्या हो सकता है, चलिए कुछ और नारुतो के फैंस हम लोग बन जाते हैं। और क्या हो सकता है, हम लोग अब बनाएंगे कैसे बनता था, हाँ, ये बनता था ऐसे, एक मिनट, ये क्या है, टेलीपोर्टेशन jutsu वाला शिसुई, जी हाँ, है ना। इफ यू गाइस वॉच, अदरवाइज हाँ हाँ, ड्रैगन बॉल जी के फैंस जो है वो ये बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लोज्ड कर्व के लिए जो रिलेटेड टू हमारा तो हो गया, चलिए फिलहाल अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो पार्ट बी, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ entirely of line segments. ओके, एन ओपन कर्व, तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, उसकी एक साइड छोड़ दीजिए। आप एक स्क्वायर बना दीजिए, उसकी एक साइड छोड़ दीजिए। आप एक पेंटागन बना लीजिए और उसकी एक साइड छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप इस आंसर को भी कर सकते हैं। A polygon with two sides, that is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है, वी हैव डिस्कस्ड दैट इन आवर प्रीवियस वीडियो इन पार्ट 3। चलिए, एंगल्स हमने पार्ट 3 में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 4.3 पे। तो 4.3 हम लोग अभी कर लें या फिर, चलो अभी कर लेते हैं, समरी अलग से डाल देते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं। चलो, तो स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.3, a bonus exercise for all of you. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। चलो, अब इसमें क्या क्या एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, इसको हम लोग कैसे नाम देंगे, एंगल बी सी डी, ठीक है। द सेम कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल टी सी डी। दिस, द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन शुड बी इन द मिडल, द वर्टेक्स, and the other two can be interchanged, they do not have any effect, ठीक है, they do not have any effect. For example, I'll give you a much better example for you guys to understand. For example, चलो एक हम लोग क्या करते हैं कि ये ले लिया, तो थोड़ा सा
क्या कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पेस्ट करके और बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज और करते हैं हम लोग, कमिंग बैक टू दी, हम लोग यहाँ पे एक ब्लू डॉट बना लेते हैं, ठीक है। और एक ब्लू डॉट और बना लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक ये तो अपना वर्टेक्स है ना, और एक यहाँ पे ब्लू डॉट तो है ही, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कैसे, इसको लिख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। एंगल बन रहा है हमारा ये, तो रे रे कौन कौन सी है इसमें, जस्ट नोट इट डाउन। रे है इसमें सी ए, और कौन सी रे है इसमें, बी ए, ठीक है। ये आप बना लीजिएगा ऊपर। और कौन सी है, सी डी, ठीक है। दीज आर द रेज यूज्ड। और व्हाट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें ए बी सी और डी, ठीक है। एंगल कौन सा है, सिर्फ एक, ठीक है। चलो अब मैं दिखाता हूं कि इस एंगल को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं। एंगल डी सी ए, ठीक है। एंगल ए सी डी, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं इसको एंगल बी सी डी, मतलब एंगल मेड बाय वन लाइन सेगमेंट एंड वन रे, ठीक है। तो हम लोग ये भी हो जाएगा, द एंगल विल रिमेन सेम। तो जस्ट नोट डाउन दिस फिगर, note down these things and note down this answer for your reference so that you can always मतलब take reference from the back of the notes और आप इस चीज को समझ सकें। चलिए मूविंग ऑन टू आवर एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 मतलब एंगल नंबर 1 कर लिया था, और 2 हम लोग क्या कर लेंगे, 2 हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हम लोग चलेंगे, किसी भी मोशन में आप चल सकते हैं। एंगल सी डी ए विच इज सिमिलर टू, आप पलट के लिख लीजिएगा। एंगल 3 हम लोग मान लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी, पलट करके आप लोग लिख लीजिएगा। और एंगल 4 इसको आप लोग मान लीजिए एंगल, इसको लिख लीजिए एंगल ए बी सी, पलट करके आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंगल्स, बट नॉट एप्लीकेबल टू व्हेन देयर आर ओनली 2 साइड्स, बिकॉज 2 साइड्स पॉलीगॉन नहीं बनाते। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, in the given diagram name the points in the interior of angle DOE। एंगल DOE कौन सा है, ये है, ठीक है। क्योंकि ये रेज है तो ये इनका एरिया जो है रीजन वो लिमिटेड नहीं होता है, तो आप ऐसा ना समझें कि एंगल DOE जो है वो बस यहीं तक है, that is also till here, that is also till here, because the rays can extend indefinitely on one side, ठीक है। तो इसमें आपके हो जाएगा पॉइंट ए, ठीक है। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, EOF, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तो एंगल EOF के बाहर कौन से पॉइंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं, सबसे पहले एंड सबसे ऑलमोस्ट सबसे ऑब्वियसली विजिबल इज पॉइंट सी। और कौन सा पॉइंट्स है जो नॉट मतलब इंटीरियर में है एक्सटीरियर में है EOF के, वो है पॉइंट ए और पॉइंट डी, पॉइंट ए एंड डी, these are also on the exterior of angle EOF, ठीक है। on angle EOF, on angle EOF the points which lie are point E, B, O and F, okay, E, B, O and F, okay। So coming to question number 3, draw rough diagrams of two angles such that they have one point in common। मतलब क्या हो गया कि 2 एंगल्स बनाने हैं जिसका के 1 पॉइंट इन कॉमन हो, तो आप इसको ये मान लीजिए A, B, C and this will be O, you can also mention it D, it is your choice। एंगल AOB and angle BOC have the point O in common, ठीक है। पार्ट बी पे आ जाते हैं, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ओके, ये भी देख लेते हैं। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, वो ये कि ये आपका आंसर जो है, ये आपका आंसर बी का हो गया,
इसका आंसर ये वाला होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2, और इसमें एंगल 1 एंड 3। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 को अगर आप ले लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी हैव पॉइंट ओ इन कॉमन, और एंगल 1 एंड एंगल 3 को अगर आप ले लेंगे तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी इन कॉमन। ठीक है, इसमें सिर्फ O है और इसमें O and B है। 3 points in common, so how can this be? This can be from our previous example with which I taught you that how angles do not change जब points coincided हो on the same ray A, B, C and D। ठीक है, तो एंगल ADC and angle BDC have 3 points in common, the point B, point D and point C। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 4, point A, point B, sorry, point B, point D and point C, these are the common points। Part B, 4 points in common, how can this be? This can be when another figure, the same figure, if I put over here a point such as E, if that will be, then angle BDE and angle ADC will have the point B, D and E in common. So 4 with point E, the same figure, when E is added, the answer will become B, D and E. These will be the common points. Okay, coming to part E, one ray in common only. Okay, so this can be done when we take 1 and 3. In this, ray OB will be common to both the angles, angle AOB and angle BOC. Okay, so with this we conclude the exercise 4.3 and exercise 4.2. So I hope that all the answers have been discussed very clearly. In case you do not find it clear or you find any sort of confusion, do comment on our channel and like our videos and share our videos with your friends, with your classmates, or even with your juniors in case you care about them. So, okay, in the next video, we'll be discussing what have we discussed or the summary of the chapter. And in the next video, we'll be starting chapter 5 of class 6 mathematics. Okay, goodbye.